Okay, तो आज we'll move on with the electronic configurations. I think electronic configuration as a topic, possibly it will close today. इसके further हम discuss करेंगे how actually we can explain well the ionization energies and some other aspects. So last हमने जहाँ तक हमने किया था that was scandium 21, like N3 हमने पूरा किया था. अगर आप लोग याद रखें तो प्रिंसिपल शेल अगर 3 है तो it has सब शेल 3s और 3p and 3d. But there is another shell 4s which is trespassing. I mean, it is the fourth level, but its energy is lesser than 3d, more than 3p. So the 4s actually takes up this position. So 3s से 3p की ज्यादा है, 3p से 4s की ज्यादा है, 4s से 3d की ज्यादा है. So electrons are filled from the lowest energy to highest energy. Now for argon, it was atomic number 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p6. Completion. For potassium, it is argon 18, potassium is 19. It means ऐसा नहीं है कि पहले 3d में जाए फिर 4s में. Rather argon 18, 3d not, 4s1. हमने पहले 4s को एक दिया और मैंने कहा potassium belongs to group 1. It turns into potassium 1 plus ion, and then it gets stability of argon, finishing off the last electron. Calcium 20 mean argon 18 and 4s is now filled, 4s2. अब जो आएगा, that new electron will not be gated by 4s, it is filled. Scandium 21 should be argon 18, 4s2 and 3d1. तो यहाँ से D fill होना शुरू हो जाएगा. और आपको पता है कि D can have maximum of 10 electrons. Can have maximum of 10. So it's a long way. Scandium 21, then it is titanium 22. आप देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है ये. आर्गन 18, 4s2, 3d2. फोर एस टू 3d2, d1 1 d2 1. अब टाइटेनियम अगर आयन बनता है, जनरली टाइटेनियम हैज द स्टेबल आयन एज 4 plus ion. It can turn into Ti2 plus, but that is not stable. Tends to lose all the 4 electrons. लेकिन स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे है तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम है इसके ऊपर. So most electrons, all the valence electrons are normally loaded off. The stable ion is Ti4 plus. जब 4 plus है तो it mean 4s2 भी vacant है, 3d भी vacant. लेकिन अगर Ti2 plus कह दे आपसे और कहे show the electronic configuration of Ti2 plus, although it's not a stable ion, तो आप 4s को vacant करेंगे, d को नहीं. S is filled first and offloaded, vacated first as well, offloaded first as well. जब हमने फिल किया था तो इलेक्ट्रॉन्स एस में आया था, और जब हम उसको वेकेट करेंगे तो फिर भी एस से ही करेंगे. तो इट मीन अगर Ti2 प्लस का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इट विल बी Ti argon 18, 4s naught, 3d2. It's not that stable because अभी भी D में 2 है. तो normally stability is achieved when all the last shell
Electrons are gone and it is reduced to an argon core. Sorry, any noble gas core, nearby noble gas core. General. Titanium 4+ is a stable ion. उसके बाद आता है हमारे पास वेनेडियम 23, V23, वेनेडियम 23. हम फिर वैसे ही पोस्ट करेंगे आर्गन 18, 4s2, 3d3, normal, S is filled and then D. D1, D2, D3, all as one. उसके बाद एक जरा सा फिर ट्विस्ट आ रहा है. It is chromium 24. And normally, अगर ह्यूमन फीलिंग होती, इंसानों ने कुछ किया होता, साइंटिस्ट ने कुछ चीज अपनी तरफ से कुक की होती, तो ऐसे होता आर्गन 18, 4s2 and 3d4. But when you experimentally observe it, ऐसा नहीं है. This is not the configuration. Rather, this is the exception. Chromium will have Cr24, atomic number 24. It should be argon 18, 4s1, 3d5. 4s1, 3d5. Kept by the nature. We are only explaining it. So chromium is not 4s2, 3d4 जैसे था, जैसे इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि पहले S फिल होगा और फिर D फिल होगा. It's not the case. S में 1 आएगा और D में 5 आएगा. It is the most stable outfit. Naturally, it is like this. So it means 4s and 3d. 3d has 5. 1, 2, 3, 5. D1, 2, D5. S, 4s. It means 4s and all 5ds, they lie in the same energy bracket. That is why they are filled like this. So by nature, chromium, बाद में copper में भी exception आएगी. Chromium has S, 4s and Ds all lying in the same lane. Same energy bracket. और जब same energy bracket हो और orbitals हो, the electrons are filled to give the maximum number of unpaired electrons. That is why each of them should have single electron with parallel spins. It gives it a maximum stability. और जब आप क्रोमियम के आयंस देखेंगे, Cr, क्रोमियम जब आयंस में चेंज होता है, ट्रांजिशन मेटल है, कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है, तो इधर इट इज 3+ or 6+. When it is 3+, it is 4s0, 3d4. And when it is 6+, argon 18 ज़ाहिर core होगी. But when it is Cr6+, it is argon 18 and nothing more. All the 6 electrons are offloaded. Chromium 6+. In this case, it has the color green. आप A2 में देखेंगे color formation क्यों ऐसे होती है. And in Cr3+, it has the color orange. Transition metals are the one that actually produce colored compounds. And d orbitals are involved. वहाँ पे कोई electronic transition up and down and d splitting होगी जो आप A2 में सीखेंगे. यहाँ पे आपको just configuration और ये आना चाहिए
how it changes to ions, and after changing into an ion, so stable ion, what are the electronic configurations actually achieved? What is then the final situation? There is chromium 3 plus, 6 plus, and chromium as a pure atom 24. Okay, special thing about chromium, its exception 4s1 3d. Okay. Then we have manganese 25. Manganese 25. Yes. जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन आई डू स्टॉप मी, वी कैन नॉट रश थ्रू द A-level केमिस्ट्री एवर. ये करके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्सरसाइज आई विल वेट थ्रू. मैग्नीज 25, इट मीन आर्गन 18. अगेन नॉर्मल सी आ गई 4s2 20 3d5. Each d has single electron, singly occupied. It has 5 orbitals, 5 rooms. अब जानते हैं कि 4s, any s have 1 room and d's have 5 rooms, d1 to d5. And each single room on an orbital can have maximum of 2 electrons. So third energy level has 4th shell coming before 3d. Manganese 25. It is like this. और मैग्नीज भी जो आइंस बनाती है, अगर आपसे आइंस पूछेंगे तो 2 स्टेबल आइंस है, Mn2 प्लस एंड Mn प्लस 7. बीच वाले भी +4 भी स्टेबल होता है. मैग्नीज 4 ऑक्साइड +7 आपको कहाँ मिलता है? अगर आपने रेडॉक्स पढ़ा, लेवल्स में आप ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं निकालते, इतने डिटेल नहीं करते. तो KMnO4 में मैग्नी Mn जो है +7. सर यस सर हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद करनी है हर मेटल की इंडिविजुअली. हम ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे, नंबर 6 और 7. तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स बड़ी डिटेल में निकालनी आ जाएंगी, हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है ना, हमें वहां पे एक मेथड आ जाएगा, शायद कुछ बच्चों को पहले भी आता हो. वो लेवल्स में भी टीचर्स एक्सप्लेन कर देते हैं. तो वी नो दैट पोटेशियम मैग्नेट ओवरऑल इज 0. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ न्यूट्रल कंपाउंड 0 होता है. हम वहां निकालना सीखेंगे या नहीं. और जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को आपसे कहे कि मैग्नीज का डालें, निकालें, क्या होगा? तो ग्रुप 1 का फिक्स होता है +1. ग्रुप 6 नॉर्मल -2, ग्रुप 6 है -8. तो अगर 0 करना है तो इट मीन इट शुड बी +7. तो हम ये एक मेथड सीखेंगे, जस्ट लाइक ABCTCZ. तो आपको आ जाएंगे. यहाँ पे अगर आपको वो क्वेश्चन देगा तो उसने ऑक्सीडेशन स्टेट खुद दी होगी. कहेगा Mn+2 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें. तो जैसे मैंने ऊपर कहा, आपने S को पहले फिल किया, S को ही पहले वेकेंट करेंगे. तो अगर मैं Mn+2 की करूं, Mn+2 अगर कह दें तो इट शुड बी आर्गन 18 4s नॉट 3d5. और अगर +7 कर देगा तो इट इज सिंपली एवरीथिंग इज वेकेटेड आउट. सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के थे वो निकाल दिए, all the 7 electrons. That is why it is Mn+7. 7 electrons are less now. +7 gone. It means 7 protons are in excess. Because अल्लाह ताला ने अगर मैग्नीज को 25 प्रोटॉन्स दिए तो 25 ही इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए थे. ओवरऑल चार्ज वाज 0. But 7 electron gone, it means it is +7 now. No more neutral situation, +7 now. अच्छा, मैग्नीज 26 के बाद जो है हमारा फेमस आयरन आता है. हमारी इन एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन बड़ी डीप होगी, इसलिए हमें हर एक के बारे में सारा कुछ जानकारी चाहिए. इट्स स्ट्रक्चर, इट्स बॉन्डिंग, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टेंडेंसीज तो ग्रेजुअली आपको आती जाएंगी. ऐसा नहीं कि ये ओवरनाइट होने वाली कुछ चीज. मैग्नीज आयरन 26.
Iron, one of the most important element. Okay, because as a metal, it provides us the strength. We are living in Iron Age, and all red blood animals they got iron as like hemoglobin. So Fe2 plus जो है 26 mean organ 18 normal situation 4s2 20 हो गए and 3D में 6. अब अगर आपको कोई कहे कि डी दिखाएं कैसे आपने फिल किया है तो आप कहेंगे वन ऑफ द डी नाउ हैज अ पेयर 18 into 20 and 26. It's like this. तो आयरन की भी आप लोग ओ लेवल से जानते हैं कि आयरन में दो चीजें आती हैं. आयरन 2 भी आता है और आयरन 3 भी आता है. मोस्ट कॉमन 2 प्लस ग्रीन कलर होता है. आप इसका टेस्ट करते थे डर्टी ग्रीन कलर. और आयरन 3 प्लस भी आता है. 3 प्लस जो होता है वो ब्रिक रेड होता है. तो अगर 2 प्लस होगा तो वही रूल जो मैंने पहले बताया कि आप बस इसको वेकेंट कर देंगे 4s नॉट हो जाए. मैंने कहा 2 प्लस की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं शुड बी आर्गन 18 4s नॉट एंड 3d 6. और 3 प्लस की लिखूं तो आर्गन 18 4s नॉट बट 3d नॉट 6 5. वो पेयर चला गया. तो आयरन 2 इज नॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. रिमेंबर Fe2 प्लस. जब आप एएस में अभी प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक सॉल्ट मिलेगा आयरन 2 वाला होगा या प्रेसिपिटेट आएगा NaOH डालने से FeOH ट्वाइस का. पर टेस्ट ट्यूब आप छोड़ के थोड़ी देर और कोई काम करेंगे दोबारा अपनी टेस्ट ट्यूब देखेंगे तो आप देखेंगे वो रेड हुई होगी ब्रिक रेड. इट क्विकली चेंजेस टू 3 प्लस बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ऑफलोडेड. अगर यहाँ एस में होता या पी में होता तो पहले ये निकलता. लेकिन डी वाला है तो पहले एस वाला निकला इलेक्ट्रॉन. एस वाले दोनों निकले. और अगर 3 प्लस होगा तो एस वाले दोनों तो जाएंगे डी वाला एक जाएगा. सो वी हैव नाउ Fe3 प्लस. अगर Fe3 प्लस है it means it is 4s naught and 3d 5. There is iron 26. Okay, then we have cobalt 27, nickel 28. नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें आएगी. पर जब आप कॉपर पे जाएंगे फिर से एक एक्सेप्शन है. कॉपर 29. इट शुड बी आर्गन 18 4s. आप पहले 4s फिल करते तो होना चाहिए 4s2 20 एंड 3d कितने होने चाहिए 9. बट लाइक क्रोमियम दिस इज अगेन नॉट द केस. किसी टीचर ने बैठ के बनाया होता केमिस्ट ने कहीं ने तो पॉसिबली शायद ऐसे नॉर्मल सिस्टमेटिक प्रोसेस चलते. बट ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं रखा हो. इट इज कॉपर 29 argon 18 4s1 3d10. That is genuine configuration, original one. Copper is like this. D complete होता है D10. D10 का मतलब क्या हुआ कि इसके 5 ऑर्बिटल्स जो हैं उन सब में पेयर आ गए. इसकी जो आमतौर पे वन अनस्टेबल इज कॉपर 1 प्लस. और अगर 1 प्लस होगा और आपसे कहे कि विच वन इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 1 प्लस MCQ में ज्यादा पूछता है तो कहेंगे कॉपर आर्गन 18 4s नॉट 3d10. और अगर कॉपर 2 प्लस की पूछे तो आपने एस को हमेशा पहले वेकेंट करना है. वो तो होगा ही होगा बेचारा 4s नॉट. बट नाउ इट इज 3d9. One of the electron is offloaded from D as well. That is stable one. Normally Cu2 plus blue color का.
and copper 1 plus is it is slight red orange type. We have zinc 30. Okay, remember zinc is not a transition element. Just like scandium is not the transition. Start पे हमने किया कलरलेस कंपाउंड बनाता है बिकॉज उसका स्टेबल सारा वेकेंट हो जाता है. बट आपको ये चीज भी यहाँ जानने की जरूरत नहीं है. जस्ट फॉर फेयर नॉलेज, कभी आपको लगेगा जिंक के कलरलेस कंपाउंड क्यों होते हैं या स्कैंडियम के, तो इट इज फेक. आपको A2 में जाके समझ आएगी क्यों ऐसा है. जिंक 30 should be argon 18, 4s2, 3d10. Are we done with all the 30 electrons? Yes. 18 and 2, 20 and then 30. Add it. So it is there. अब जिंक का एक ही आयन आपको मिलेगा. There is one reason, one fact, आप इसे ट्रांजिशन नहीं कह सकते. ट्रांजिशन एज वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट 2 plus. Zn is only 2 plus. D remain filled. आपसे कहेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप कहेंगे आर्गन 18, 4s0, 3d10. That is stable. And it produce colorless compounds. जिंक कंपाउंड जितने भी होंगे कलरलेस होंगे. इसलिए आपको याद होगा जब हमने इसमें NaOH डाला था तो जिंक का कलरलेस प्रेसिपिटेट व्हाइट इज कलरलेस, व्हाइट पीपीटी बना था, जबकि कॉपर का ब्लू बना होगा. So till 30 we need to know this. अगर आप N4 पे जाएं तो it should be 4s, 4p, 4s, 4p, should be 4d, 4f. लेकिन हमें पता है कि 4s इज लर्किंग बीनीथ द 3d फील्ड फर्स्ट, फिर 4p आता है. 4p के बाद 4d की बारी आनी चाहिए, लेकिन फिफ्थ फ्लोर का एक चीज नीचे आ रही होगी, दैट इज 5s. तो वेनेवर नॉर्मली इतना ज्यादा आपसे ये वाला फोर्थ लेवल नहीं पूछा जाता, बट यू नीड टू नो डेफिनेटली. तो आपसे पूछेगा जब फिल करने को कहेगा तो नो डाउट 4s के बाद किसकी बारी आएगी, 4s के बाद 4p की बारी आएगी, फिर 4p के बाद आप 5s फिल करें, फिर आप 4f पे जाएंगे. तो टिल 30 हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली प्रैक्टिस करते हैं, बट इन एक्सरसाइजेस आर समवेयर व्हेन देयर आर क्वेश्चंस यू नीड टू फॉलो द रूल दैट एवरी s after third shell comes before its d. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की है इसे हम कहते हैं 1s2 नोटेशन. Electronic configuration in 1s2 notation or in 1s2 style. One stand for principal shell, S for the subshell, and mean maximum electrons. But normally हम इनको इस तरह रिमेम्बर करते हैं. That is till 30. अब एक और स्टाइल हमें आना चाहिए before going back to the ionization energies explanations. Okay, and that is in terms of block diagrams. सिंपल इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन किसी और तरह से करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक arrangement in terms of
electronic arrangement in terms of block diagrams. Energy level. That is basically energy level show, making things easier. इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, कम होती है. सपोज फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन के लिए करें. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 axis, energy on the right, electronic arrangement here, placement, number of shells. For carbon it is 1s, 1 block. Then it is 2s, another singlet. Then it is 2p, and 2p has 3 compartments, px, py, pz. हर p के 3 सबशेल्स. और यहां से हमें क्या नजर आ रहा है कि 1s is n1, this is n2, and energy increases like this. तो अगर हम इसको फिल करेंगे कार्बन के लिए तो 1s, 2 electrons, 2s, 2 electrons, 1s2, 2s2, then 2px1, 2py1. So it means it shows what? Shows that its valence shell is 2s and 2p, means valence shell is 2, it has 2s and 2p, and both the electrons of 2s are there intact, 2p has 1 1. और ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल स्टेट बिफोर द रिएक्शन. और जनरली हम बॉन्डिंग में सीखेंगे कि जब कार्बन रिएक्ट करने लगता है, यू प्रोवाइडेड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो ये अपने एक एस को प्रोमोट कर देता है यहाँ पे. तो जो एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसमें एस में 1 होगा, 2s में 1 होगा, और पी एक्स, पी वाई, पी जी सब में सिंगलेट होगा. So the carbon has 4 unpaired electrons then. And when it has 4 unpaired electrons, it means it is rightly placed to make 4 covalent bonds. तो कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं, जब भी कार्बन बॉन्डिंग करता है तो इट मीन अगर हम मीथेन ही बनाए तो इट इज CH4. It's quite early to explain about carbon because ये बॉन्डिंग से पहले अपने s और p's को मिक्सअप भी करेगा और हिब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिसे हम हिब्रिडाइजेशन कहेंगे, और सर्टेन एंगल्स एंड ओरिएंटेशन अचीव करेगा और फिर बॉन्ड करेगा. सो दैट इज अनदर वेरी सिंपल थिंग, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं, बट जस्ट ह्यूमन माइंड मेमोरी मैच करता है तब आपको याद रहेगा. एक तो ये याद रहेगा कि इट हैज अ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन व्हेन इट इज रेस्टिंग, एंड बिफोर द रिएक्शन इट शिफ्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू पोज 4 सिंगलेट्स टू एक्चुअली अचीव 4 pairs to become a stable electronic configuration keeping 8. लेकिन अगली बात जो होगी थोड़ी डिफरेंट होगी, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, कि अपने s और p's को मिक्स भी करता है और उनकी एक जैसी शेप्स, एक जैसी ओरिएंटेशन, एक जैसी एनर्जी कर लेता है, सबको डी जनरेट कर लेता है. उसको हम हिब्रिडाइजेशन कहा करेंगे. उसे हम कहते हैं प्रेपरेशन बिफोर, देयर इज प्रेपरेशन बिफोर अ रिएक्शन, an adjustment before a reaction. ओके जैसे बच्चों के कार्टून्स में और ये लड़ने से पहले कुछ और तरह के बन जाते होते हैं, बेंटेन वगैरह, जस्ट लाइक दिस. अगर हम नाइट्रोजन के लिए ब्लॉक डायग्राम करें N7, एनर्जी इंक्रीजेस लाइक दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड. तो आप देखेंगे ऐसे हम लिखेंगे 1s, 1 ब्लॉक, 2s हायर एनर्जी पे एक और ब्लॉक, फिर 2p और 2px, py, pz. जब हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे तो 1ss, 2, 2ss2. लेकिन जब 4 तो हो गए, 7 है, 3 रह गए, तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि पहले px को 2 दे दें और py को 1. नो, अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं रखे हुए, ऐसे रखे हुए.
There is a reason nitrogen has three singlets in px, py, pz, unpaired electrons, and they are ready to pair up very quickly with its own partner. तो नाइट्रोजन नॉर्मली आपको नजर आएगी कि n ट्रिपल बॉन्ड n बना होता है. इट मीन इसने अपने p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप किया हुआ है अपनी दूसरी एटम के साथ. And nitrogen is very, very stable, almost inert, very high temperature it need to react, used in food packing, acts as a solvent in the nature of air में ऑक्सीजन को जस्ट डिसॉल्व करके रखती है, खुद रिएक्ट नहीं करती. इसका रीजन ये है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. तो 3 of its bond need to be split. 3 of the orbitals or 6 of the orbitals of both need to be separated before showing any interest in a reaction. That needs very high energy. तो आपने वो levels में पढ़ा होगा. To separate them apart, we provide 950 kilojoules of energy. That's a huge thing. इसीलिए सनलाइट पड़ती रहे सारा दिन तो आपको कोई थ्रेट नहीं है कि NO2 बन जाएगा या N2 बन जाएगा, N2O, NO2. No toxicity normally. Very little amount, negligible amount के बर्दाश्त हो जाती है. और वैसे भी गैस है, अपर एटमोस्फेयर में उड़ जाती है तो हम बच जाते हैं. But stability comes right from a triple bond. And triple bond comes from the fact it has a p which is singly occupied. Has to be because electrons are filled in degenerate orbitals. तीन एनर्जी जिनकी एक जैसी है उनको degenerate कह रहा हूं मैं. To give the maximum number of unpaired electrons, just like a bus seats. Vacant top individual अपनी अपनी seats ले लेते हैं. So nitrogen 7 आप इस तरह बनाते हैं. इस तरह पे ब्लॉक डायग्राम मीन से ऑक्सीजन अगर 8 होगी तो आप देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी में भी ये फैक्टर आएगा हमें काम कि स्पिन पेयर रिपल्शन क्या होगी. तो 1s शुड हैव 2, 2s में 2 रखेंगे. लेकिन जब आप 2p में आ रहे हैं, देखिए मैं 1s से ऊपर 2s बना रहा हूँ, 2s से ऊपर 2p बना रहा हूँ, तो यू विल फाइंड आउट 2p हैज 3 रूम्स. और अगर आप फिल करेंगे तो 1s इज 2, 2s is 2, but 2px, 2py, 2pz अब पेयर आ गया यहाँ पे. बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं तो उन्होंने p में ही जाना है. तो वन ऑफ द p हैज टू ऑफर द स्पेस. सो इट इज 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. कंपैरेटिवली लेस एनर्जी चाहिए होगी, p में रिपल्शन चल रही है. तो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी. हम पढ़ेंगे इसको पॉसिबली कल के लेसन में, हम कुछ करेंगे डिस्कस. दैट इज ऑक्सीजन 8. और अगर आपको ज़हन में आ रहा हो कि ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन क्यों बनती है, तो रीजन इज इट हैज दीज 2p which are singly occupied. और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा इसको, कहीं से आ जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे. And then it turns to O2 minus. And then exactly it is basically, it is just like a noble gas neon. because stable octet हो जाएगा इसका. तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8. तो इसी तरह ब्लॉक डायग्राम्स, हमें इतनी बड़ी ब्लॉक डायग्राम्स नहीं आती, जस्ट टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, इतनी स्पेस ही नहीं होती. तो हमारे पास फ्लोरीन 9 हो जाएगी. और फ्लोरीन 9 में अगर आप इसी में देखें, आपको समझ आ गई है, तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, बस 2px में 2 रह जाएंगे, 2py में भी 2 हो जाएगी, 9 जो हो गए. और नियोन पे जाके स्टेबिलिटी आती है. बिकॉज अगर आप नियोन बनाएंगे तो आप देखेंगे नियोन का 1s भी फिल है, 2s भी 2 है, वो तो होना ही है. बट 2px, 2py and 2pz all have now doublet. तो इट मीन नियोन जो है एटॉमिक नंबर, नियोन एटॉमिक नंबर 10 इज स्टेबल. नो इंटरेस्ट इन द रिएक्शन. कल भी मैंने बताया होगा लेसन में कि नियोन यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री फॉर द पर्पस, इनर्ट है, लाइट्स में यूज करते हैं. ओके. और एक बात अपने ज़हन में रखनी है जो मैंने पहले ऑर्बिटल्स में बताई थी कि S इज द स्फेरिकल ऑर्बिटल, शार्प वन. स्फेरिकल तो हम कह देते हैं, शार्प वन इट इज, जो आपको नजर आता है इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव. और जो P नजर आ रहे हैं आपको, P हैज 3 ऑर्बिटल्स.
like this, py, px, and it can be pz या whatever। एक p अगर आपको ड्रॉ करने को कहे तो इट्स लाइक दिस। और अगर कोई आपसे कहे कि डी ड्रॉ करें तो आमतौर पे डी जो ड्रॉ होता है स्टेज पे एस में वो सिर्फ एक ही है। ऑर्बिटल इज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन मूव, एन इलेक्ट्रॉन मूव लाइक दिस। तो डी आपको बड़ा फंकी सा नजर आएगा, ऐसा ऐसे भी मूव कर रहा है और इस तरह भी जा रहा है। वैसे तो डी जो है ये सबसे सिंपल डी है, डी जी स्केयर इसको कहते हैं। बाकी डीज जो है आप ए टू में जाके सीखेंगे कि उनकी शेप्स भी इससे ज्यादा कम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे आपको एक ही डी ऐसे ये बनाया पहले पी की तरह, दरमियान में सर्कल बना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 1s2 स्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ब्लॉक डायग्राम अपने रिकैप करनी है। कल हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।